اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو۔ یہ ایکس مسلموں کی محفل بیٹھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اے رسول رات میں یہ لوگ بیٹھ کے تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں اللہ اکبر۔ تو یہی مسلمانوں کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے روکے اس کو۔ الحمدللہ، اور اسلام تو اللہ کا شکر ہے کہ رکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ ویڈیو پلے کر کے دیکھیں گے، اور ایک ہی قرآن کی انشاءاللہ آیت آپ لوگوں کو سامنے پیش کروں گا۔ قرآن سے جو اس آیت اس پوری اسٹریم کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ، اس چیز میں سب کا جواب مل جائے گا۔ ایک ہی آیت انشاءاللہ ان کو سب کو دفن کر دے گی۔ چلیے پلے کرتے ہیں انشاءاللہ، ویڈیو سنتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ لوگ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سوال اس پہ بھی اٹھے گا اور سزا اس کو بھی ملنی چاہیے۔ ایڈم آپ کا سواگت ہے، ویلکم ہے، آداب سر، تھینک یو، آداب، السلام علیکم۔ اظہر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بس الحمدللہ۔ اچھا اظہر بھائی، تھوڑا سا مسئلہ آپ کر رہے تھے، میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈسکشن جاری رکھیے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اللہ میسنجر نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسانیت گناہ نہ کرتی، اگر انسان گناہ نہ کرتے تو اللہ ان کو ختم کر دیتا، بے شک بے شک بے شک، ڈسٹروائے کر دیتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، بے شک، اور پھر ایک نئی تخلیق کرتا جو کہ گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی، بے شک اللہ سے اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ اور اللہ بڑا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور یہ ریاض الصالحین کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم ریاض الصالحین دونوں میں یہ ایز اے صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تم کو ختم کر دیتا اور کچھ اور لوگ پیدا کرتا جو کہ گناہ کرتے اور پھر اس گناہ کی معافی مانگتے اور پھر اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ میاں جو ہے ہمارے، ان کی بیسک لاجک یہ ہے کہ انہیں پسند ہے کہ ہم ان سے معافی مانگیں، اور اس لیے ہمیں گناہ کی خصلت پر بنایا گیا ہے۔ تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ میاں نے ہی ہمیں گناہ کرنے والا بنایا ہے، ورنہ اگر وہ ہمیں گناہ کرنے والا نہ بناتا تو وہ ہمیں ختم کر دیتا اور نئی مخلوق بناتا جو کہ گناہ کرنے والی ہوتی۔ باقی تمام آرگیومنٹ ساحل بھائی کے ہیں، آپ بات کریں سر، میں صرف یہ فکس کرنا چاہتا تھا، میں میوٹ ہو رہا ہوں واپس۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کرے، ورنہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پھر اس کو ختم کر دوں گا، دوسرے ایسے لوگوں کو لے کے آؤں گا آپ کے سامنے دنیا میں جو گناہ کریں گے اور وہ جب معافی مانگیں گے تو اس کو معاف کر دے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ کیا یہ کریمنل مینٹیلٹی نہیں لگ رہی آپ کو اللہ کی؟ نہیں، اس کا دیکھیے، نہیں اس طریقے سے یہ غلط نکالا جا رہا ہے۔ وہ ان کا ایکچوئل میں ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بہت ایک میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، شیطان ہے تو غلط ہی پیش کرے گا نا۔ ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر ایک ہیرا ہے کہ بھائی اس کو ڈھونڈنا ہے۔ جب غوطہ خور سمندر میں جاتا ہے وہ بہت ساری جگہ پہ ہیرا ڈھونڈے گا، لیکن ایگزیکٹ کہاں پر ہے وہ ایک مفتی بتا سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ اصل میں کیا ہے۔ بے شک اسی طریقے سے موتی جیسا ڈھونڈنے جا رہا ہے، وہ سمندر بہت بڑا ہے، کہاں ڈھونڈے گا، لیکن اس میں ایگزیکٹ کون سی جگہ پر ہے ہوتا ہے موتی، وہ ایک بہت بڑا پہنچا ہوا انسان بتا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی جو مفتی صاحب ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، وہی پورے طریقے سے حدیث کا مفہوم پورا بتا سکتے ہیں کہ مفہوم اصل میں ایک کس چیز کے لیے نازل ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، کس وقت پہ نازل ہوا تھا۔ تو یہ ایسا طریقے سے نہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ تم اگر نظریہ وہ لگا کے رکھے ہو کہ ان کا فولٹ پکڑنا ہے تو فولٹ ہی نظر آئے گا۔ ہاں بے شک صحیح بولا۔ ہاں بولیے۔ اصل اظہر بھائی، یہ جو ترجمہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ علماء کا ترجمہ ہے، ہمارا ترجمہ نہیں ہے۔
बेशक उलमा ने सही तर्जुमा सही किया, बात है। तर्जुमे में भी हम कोई बना भी गड़बड़ नहीं नहीं सकते है। हैं कोई हदीस अल्लाहू भी, अकबर, हम अपनी कुरान से हम महफूज है। मक्खी का पर नहीं बना सकते तो हदीस और कुरान कहाँ लिख सकते? वो बेशक बेशक सवाल ही नहीं कुरान होता है। जैसी किताब ये कोई है, नहीं लिख लेकिन सकता था। इसका सुभान तर्जुमा अल्लाह, अल्लाहू और अकबर, तरीके अल्लाह। से निकाला गया है। इसको गलत चीज पे अगर उस पे पकड़ के बैठे हैं तो गलती से हर लाइन गलती नजर आएगी। तो कुरान में आपको हदीसों में खाली क्या गलत ही वर्ड दिखा है, अच्छा वर्ड आपको अच्छा हदीस नहीं मिला अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक ने और गुनाहों से रोकने के लिए कोई हदीस नहीं मिली आपको। अच्छा अच्छा, एक चलो भाई इस पे ये भाई ने बात बोला ना कि आप लोगों को और कोई बात नहीं मिली कि इस बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों ने कौन सी बात पकड़ के रखा जिसका बहाना लेके लोग लड़ा करते हैं ना। खैर वो आयत दिखाने का मकसद तो अभी नहीं है, इंशाअल्लाह दिखाता रहूँगा, आएगी सामने, पेश करूँगा, कोई मौका मिलेगा ना पेश करूँगा कि लोग किन बातों को लेके झगड़ा करते हैं और किन बातों से बचते हैं। अल्लाह ने कुरान में उस चीज़ का भी ज़िक्र फरमाया कि फ़ला बातों को लेके ज़बरदस्ती अड़े रहते हैं और जो मुश्ताबे बातें होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, चलिए वीडियो प्ले करते हैं, इसको देखेंगे आज। आप असल में बहुत नहीं बता लीजिए, हदीसें ऐसी बहुत सारी 7,000 से कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर हदीसों में अगर आपको अच्छाई चीज आपको ढूंढनी तो क्या अच्छी वाली हदीस आपको नहीं मिली? थोड़ा रुक जाए सर भाई, असल में ना मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ कि हदीसें हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। मुझे एक बात बताइए, आप एक काम करिएगा, ये जो हदीस के जो नंबर्स है वो आप लेके जाइएगा, इस पे थोड़ा तहकीक करिएगा, आपके उलमा आपको इस पे क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये कह रहे थे कि बुराई अल्लाह ने नहीं बनाई है, फिर आपको हवाला दिया गया कि बुराई बनाने वाला लेके जाएगा रे भाइयों, जब तक शैतान वसवसा डालने वाले ऐसे आ जाए ना जो तुम्हारे दिलों में वसवसे डाले, जो आयतें दिए करें, जो हदीसें देवे ना, ये लोग जाने का अपने उलमाओं से और अपना शक दूर करने का, इनकी बातों में नहीं आने। तरीके से मैं शैतान ना हमारी जान का दुश्मन ना माल का दुश्मन, शैतान ईमान का दुश्मन है। कि अजहर शेख जो है ये काफी अच्छा इंसान मुझे लग रहा है। अच्छा अजहर भाई, आपके सामने कोई बच्ची का कोई रेप करेगा, ठीक है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे जो सभी करते हैं बचाएंगे ना, बचाने की कोशिश करेंगे। क्यों बचाएंगे आप, क्यों बचाएंगे? क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं ठीक है, मैं इंसान हूँ तो एक दूसरे को, इंसान को ही पहचान बचाएगा ना, इंसान को बचा सकता है, इंसान फरिश्तों को तो नहीं बचा सकता है। एग्जैक्टली आप अगर आपके सामने किसी बच्ची का कोई रेप करने जाएगा और अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आप जरूर बचाएंगे उसको, अगर आपकी कुदरत में होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पास रेप करने वाला इंसान नहीं था, वो जानवर था। कि वो इंसान जो रेप करने वाला है वो आपको पता चल जाए कि ये रेप करने वाला है और आपको ऐसी पावर दे दी जाए कि आप वो रेप होने ही ना दे, यानी वो नौबत ही नहीं आने दे कि उसका रेप। तो मेरे भाइयों इस बात पे थोड़ा गौर फिक्र करना कि रेप करने वाला आदमी लगता है इंसान नहीं है। अरे रेप करने वाला भी तो इंसान है, रेप करने वाला भी इंसान है, और जो बचाना चाहता है, जिसके दिल में दया आ रही है, वो भी इंसान है। तो खैर उसके दिल की दया का हाल भी जांचेंगे वो कितना दयावान है इंशाल्लाह। चलिए वीडियो प्ले करते हैं, थोड़ी सी और प्ले करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आप करेंगे वैसा, वो पावर का यूज करके? जरूर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान है ना। अब यही चीज आप सोचिए, जो बच्ची का रेप हो रहा है, क्या अल्लाह को मालूम है कि नहीं है कि ये रेप होने वाला है? अल्लाह को सब पता है, आगे मालूम है या नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। मालूम है, हाँ बेशक अल्लाह को सब पता है। अच्छा दूसरी बात, क्या अल्लाह के पावर में है कि उस रेप को अल्लाह रोक देता? बेशक, क्यों नहीं रोक सकता था, रोक सकता, बेशक रोक सकता, लेकिन अल्लाह पाक को नहीं, मैं बता रही अगर एक मिनट आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा अपनी बात। भाई तू ला सवाल तो अल्लाह पाक के पास तो अल्लाह पाक के पास सब ताकत है, अल्लाह पाक के तो बेशक उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन को भी कत्ल से रोक सकते थे, लेकिन नहीं, ये उम्मत को बताना था, इसीलिए नहीं रोका। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम अल्लाह की दस्ते कुदरत को नहीं समझ सकते। एक मिनट रुको ना यार, अब इतना तो साबित हो गया है कि दो पर्सनालिटी है मेरे सामने, एक अल्लाह है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। हाँ भाई आसान कर, इतनी बड़ाई मत कर भाई, अल्लाह की इसके सामने दिल दुखता है, शैतान का भिजता है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत का जब किसी के सामने तारीफ बयान करी जाती है ना, तो उसका दिल भीज उठता है। किसका? शैतान का मेरे भाई। एक मिनट दीजिएगा मुझे, अपना क्या नाम है तुम्हारा, अजहर भाई, सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे।
आपको भी समझ में आए और लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। दो पर्सनैलिटी हमारे पास, अजहर भाई को भी मालूम है। अजहर भाई के पास देखो जितने लोग देख रहे हैं, अल्लाह ज्यादा अच्छा। बेशक अल्लाह ही सबसे अच्छा है। नहीं रोक रहा। आप बताइए, आप ज्यादा अच्छे कि अल्लाह ज्यादा अच्छा? अजहर भाई इतने अच्छे इंसान हैं कि उनको अगर ये पावर मिल जाता तो वो रेप, ठीक है, पर अल्लाह से और इंसान से हम मिला नहीं सकते ना। अल्लाह के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे, वो रोक सके। बेशक अजहर भाई के पास भी पावर है कि वो रेप ना होने दे, ठीक है। पर अल्लाह से और इंसान से हम मिला नहीं सकते ना। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया, हमने अल्लाह को नहीं बनाया है, तो हम उनकी पावर से हम नहीं बता सकते हैं। एक मिनट रुको ना मेरे भाई। कंक्लूजन देखो, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखो भाई सब अजहर भाई इतने अच्छे इंसान हैं कि उनको अगर ये पावर मिल जाता तो वो रेप अल्लाह का कलाम नहीं होने देंगे। लेकिन अल्लाह के पास पावर होने के बावजूद, मालूम होने के बावजूद, वो उस रेप को नहीं रोक रहा। बहुत चिंतित हो रहे हैं मेरे आप ज्यादा अच्छे कि अल्लाह ज्यादा अच्छा? कि ऐसा क्यों होने बेशक अल्लाह ही सबसे अच्छा है। इसको बड़ा दर्द होता है। अल्लाह अच्छा है फिर भी। बेशक अल्लाह सबसे अच्छा है। उसने कोई भी निजाम कोई भी गलत नहीं बनाया है, इंसान ने उसको गलत किया है। अल्लाह ने कोई भी चीज को गलत नहीं बनाया है ना। ये साहिल मेरे भाइयों जितना साधु संत बनने की कोशिश कर रहा है ना, और जिस तरह अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, इंशाल्लाह आप लोगों को लास्ट में आयत दिखाऊंगा ना, बहुत मजा आएगा। गलत तरीके से यूज करने दिया था, इंसान ही ने उसको खराब किया है। अच्छा मुझे अल्लाह कभी कोई चीज खराब नहीं बनाता है। अच्छा मुझे ये बताएं आप अजहर भाई कि एक पुलिस है, ठीक है, उसके सामने रेप हो रहा है, और अगर वो उसको ना रोके, उसके इख्तियार में है कि वो रोक सकता है, वो ना रोके, तो क्या वो पुलिस वाला भी जिम्मेदार है? ना रोके तो जिम्मेदारी होगा। सही बात। तो अल्लाह क्यों नहीं जिम्मेदार है? अगर वो भी रोक सकता है और नहीं रोक रहा है तो ये अल्लाह जिम्मेदार क्यों नहीं? और बताएंगे इंशाल्लाह की आयत, क्योंकि ये अल्लाह नहीं, एक मिनट, ये जो रेप करने की जो सिफत है, ये डालने वाला भी अल्लाह ही है। सारी चीज करने बचने वाला भी तो अल्लाह ही ने बताया ना कि अगर गलती हो भी जाए तो तुम बचो। कहाँ है बहुत सारी पुरानों में बहुत सारा जिक्र है कि तुम कर लो, गलती हो जाए तो तुम उनसे माफी भी मांगो। नहीं, माफी मांगने से क्या होगा? रेप तो हो गया ना, उस बच्ची को रेप करके मार दिया गया ना, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? ये कौन सा लॉजिक है यार? तो अल्लाह लॉजिक बताएंगे उसका रेप हो गया, मर गई, जो भी हो गया, तो अल्लाह उसका हिसाब लेगा ना। हम आप तुम नहीं ले सकते ना हिसाब। भाई अल्लाह तो खुद जिम्मेदार है ना कि उसने ही ये सिफत डाली ना रेप करने की। अगर रेप करने की सिफत ही नहीं डालता तो ये बेचारी बच्ची का रेप नहीं होता ना। इतनी बात नहीं समझ में आ रही अजहर भाई आपको? नहीं, अगर जो बच्ची का रेप कब होता, जब उसके अंदर पूरी तरीके से अगर अल्लाह का डर नहीं होता, अगर डर होता अगर अल्लाह का उसका, तो वो रेप नहीं करता ना। तो डर अल्लाह। साहिल भाई वन मोर थिंग दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों की डिस्कशन फिर सही साइड पे जाइए। मेरी स्क्रीन दिखाइए सर। ये सही मुस्लिम की हदीस है 2658 का ए पार्ट है। ये कहती है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया। तो भाइयों अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पैसा आया, तो आप लोगों को कुरान के ताल्लुक से बता देता हूँ कि 14 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अल्लाह ताला ने वार्न किया था, ए रसूल, ये लोग जो अपना माल खर्च करते हैं दीन को रोकने के लिए, इस्लाम को रोकने के लिए, तो मैं अभी और करेंगे, मतलब आपके बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, विसाल के बाद और खर्च करेंगे। मतलब ये होते रहेगा, ये लोग खर्च करते रहेंगे कि इस्लाम को रोका जाए कैसे भी, उस टाइम से भी और अभी भी। मगर अल्लाह ने आगे क्या फरमाया? आखिर ये माल खर्च करना उन्हें कुछ फ़ायदा ना देगा, अल्लाह के दीन को रोक ना सकेगा। कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने फिक्स कर दिया है पोर्शन ऑफ एडल्ट्री विच अ मैन विल इंडल्ज इन। कि जरा इसकी हिंदी कीजिएगा सर साहिल भाई जरा। तो मेरे भाइयों मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हदीस हो, कुछ भी हो, जो है अपने आलिम के पास लेके जाओ, औलमा के पास लेके जाओ। ज़ैद पटेल साहब ने अभी कैसी बजाई साहिल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे, कितनी अच्छी दलील से इसको
सुनाया, हदीसों से भी सब बताया। तो खैर, मगर हमारी ये वीडियो टॉपिक बनाने जो आयत मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ, बड़ी साहिल को फ़िक्र हो रही है इंसानों के बारे में कि इतनी तकलीफ़ है, बेचारी का रेप हो गया, अल्लाह ने फिर भी बचाया नहीं, इसको बड़ी चिंता हो रही है उसकी, दिखाना चाह रहा है। इंशाअल्लाह कुरान अभी इन सारे इंसानों की पोल खोल देगा। तो मेरे भाइयों, ये भी एक बंदा ऐसी था जिस तरह की साहिल खान बातें कर रहा था ना, लड़की का रेप हो जाता है, ये हो जाता है, और तुरंत निपटारा क्यों नहीं, तुरंत फैसला क्यों नहीं, गलत है, गुनाह है, ऐसा वैसा है, उसकी सज़ा क्यों नहीं मिलती। तो ये देखिए मेरे भाइयों, इस जवाब में आप सारी बात समझ जाएंगे। और अल्लाह ने क्या खूब जवाब दिया कुरान करीम में। कहता है, बोले तो कारस्तानियों की सज़ा के लिए मरने के बाद का इंतज़ाम क्यों, अभी इसी समय तुरंत निपटारा क्यों नहीं। हम गाली देते हैं, तुरंत उसका रिएक्शन होता है, लड़ाई हो जाता है, तो कारस्तानी की सज़ा भी तुरंत क्यों नहीं। ये भी बंदा ऐसा अड़ियल था ना मेरे भाई, उसको मैंने, इस बंदे को ना कुरान से बहुत सारे सवालात के जवाब देंगे। मैंने एक SSB इसका पोस्ट किया था, इसने पूछा था, बोले अच्छा इतनी ताकत है तेरी किताब में, मतलब तेरे किताब में, तो बोले ये बता चाँद घटता बढ़ता क्यों है। मैंने सूरह बकरा की 183 की आयत इसके मुंह पे दे मारा था वही टाइम पे। मैं बोला ये लोग तुमसे चाँद के बारे में पूछते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है, कह दो कि वो तुम्हारी दिन तारीख देखने की मियाद है। तोते उड़ गए थे माशाल्लाह इसके भाई होश भाग गए थे, एड़ भाग गई थी इसकी, मगर कमबख्त फिर भी ईमान नहीं लाया। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है मेरे भाई, योगी सेन, मैंने कहा योगी सेन अल्लाह फरमाता है, तो यहाँ साहिल खान को मेंशन करके फरमाता हूँ, साहिल खान अल्लाह फरमाता है, और अगर कहीं खुदा अपने बंदों की कारस्तानियों की गिरफ्त करता तो रुए ज़मीन पर किसी एक जानदार को बाकी ना छोड़ता। ये तो एक मुकर्रर वक्त तक उन सबको मोहलत देता है, फिर जब उनका बेवक्त आ पहुँचेगा तो एक घड़ी पीछे हट सकते हैं, न एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। क़यामत यकीनन आने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि इसके वक्त को पोशीदा रखूँ ताकि हर शख्स कोशिश करे उसका बदला पाए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया मेरे भाइयों, अगर कहीं खुदा अपने बंदों की कारस्तानियों की गिरफ्त करता तो रोए ज़मीन पर किसी एक जानदार को बाकी ना छोड़ता। मेरे भाइयों, हर गुनाह की सज़ा इंसान को देने लगता ना अल्लाह ताला, तो इस ज़मीन पर एक भी इंसान ज़िंदा ना बचता। इसलिए अल्लाह दुनिया का निज़ाम चला रहा है। साहिल खान का भी निपटारा हो गया होता अभी तक, अल्लाह मोहलत दे रहा है। समझे मेरे भाइयों, कोई इंसान दुनिया में पाक साफ नहीं है सिवाय अल्लाह जिसे पाक करे। तो मेरे भाइयों, ये ना दुनिया की चाल है दिखाने का कि हम साधु संत, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो अल्लाह से डरता नहीं ना, वो किसी काम का नहीं रहता है, इसी तरह की बातें करता है। तो साहिल भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया, और अगर कहीं खुदा अपने बंदों की कारस्तानी गिरफ्त करता तो रुई ज़मीन पे किसी एक जानदार को बाकी ना छोड़ता, मगर वे एक मुकर्रर वक्त तक सबको मोहलत देता है, कि जब वे उनका वक्त आ पहुँचेगा तो एक घड़ी ना पीछे हट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। मेरे भाई, जब वक्त आएगा ना, पाप का घड़ा भरेगा ना, पूरा लेवल हो जाएगा ना उसका, जब फूटेगा ना तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेवल है मेरे भाई, जिस दिन पाप का घड़े का लेवल भर गया और फूट गया तो उसे फूटना है, उसे उभरना ही उभरना है। और जो मोहलत दे रहा है रेप के ताल्लुक से मेरे भाइयों, तो अल्लाह फरमाता है क़यामत यकीनन आने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि इसके वक्त को पोशीदा रखूँ ताकि हर शख्स जो कोशिश कर सके उसका बदला पाए। चैप्टर 16 आयत 61 और ये चैप्टर 20 आयत 51 की आयत है। ये दोनों आयत आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। फ़ैसले का दिन इसलिए मुकर्रर का है, चाहे तो रेप करने वालों को भी सज़ा दे सकता है। जिस बच्ची के बेचारी का रेप हुआ उसे तुरंत निपटारा कर सकता है, मगर अल्लाह मोहलत देता, अल्लाह रहम करने वाला है। मगर तुम लोग शैतान के पीछे चलने वाले लोग हो, शैतान के पीछे चलने वाले लोग हो। भाइयों, गुनहगार तो हम भी बहुत थे, चाहता तो अल्लाह कब का हमारा भी निपटारा कर देता। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र जिसने तौबा करने की तौफीक दी है। और गुनाह तो ऐसे मेरे भाइयों, कितने तो लोग हैं ना पेट के अंदर मार डालते हैं बच्चों को, कितनी औरतें पेट के अंदर पैदा होने से पहले मार डालते हैं। और रेप को इतना बड़ा पाप समझ रहे लोग, हालांकि बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। इससे भी बड़े बड़े पाप मौजूद हैं मेरे भाइयों। हाँ, ऐसी चालें चलते, भाई का खून कर देता है 1 इंच की ज़मीन के लिए। हाँ, और हक देने की बात आती तो मुकर जाते हैं मेरे भाइयों। बहुत सारी बातें अगर बताने जाऊँगा ना, दुनिया में ऐसे केसेस भी है कि माँ अपने हाथों से बच्चों को डुबा के मार दे रही है। कि क्यों मार दे रही है, कि हम दो हमारे दो, बोले ये ज़्यादा पैदा हो गए इसलिए मेरी अर्थव्यवस्था बिगड़ ना जाए, इसलिए मार दे रही है।
ذرا سی دشمنی کے کارن، حالانکہ کرائم پیٹرول دیکھیں نا میرے بھائیو، آپ لوگوں نے کیسے کیسے کیس دکھاتے ہیں دنیا میں. تو میرے بھائیو اللہ صحیح فرما رہا ہے، اگر سب کو گناہ کی سزا دینے لگتے نا تو سب کا نپٹارا ہو گیا ہوتا ہے. ساحل بھائی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. ساحل بھائی کا ایک دشمن ہے، میرا بھی دشمن اور میرے رب کا بھی دشمن، تو میرا دشمن شیطان ہے، تو کہاں سے دوستی ہوگی؟ اور اللہ نے تو کھلا فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. السلام علیکم میرے بھائیو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.